Assalamu alaikum. Good evening to one and all. Today in this video I'll be discussing about another organelle that's known as endoplasmic reticulum. Before starting the video, let me remind you about the last class in which we have discussed about cytoplasm, we have discussed about the cytosol, we have also discussed about the main cell organelle, that is mitochondria. So that mitochondria, that is the energy currency of cell, which mainly provides or generates energy for the total cell growth and development. Okay, so today in this video I'll be discussing with endoplasmic reticulum. First of all, we must know what is the terminology or what is the meaning of this term endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum, endo का मतलब होता है inside or we can say within, then plasm का मतलब होता है shape, या we can say the shape or we can say the cell, understanding, यानी inside the cell. And then reticulum का मतलब होता है network of net-like structures, यानी there will be some net-like fibers or some fiber filaments, ठीक है ना, which will be making this endoplasmic reticulum. So we can say it is a shape of cell, or we can say compartment of cell which is present inside the cell and which is mainly a network of net-like structures containing understanding some fibers, so that make up this full endoplasmic reticulum. And this endoplasmic reticulum is mainly having the two subunits. First one, that is known as smooth endoplasmic reticulum, and second one is rough endoplasmic reticulum, understanding. So if we talk about the discovery, who has discovered this, who have first seen this endoplasmic reticulum in the cells, we can say eukaryotic cells. So his name was, the two scientists were there, Keith R. Porter and Thompson. In 1945 they discovered, they have seen first time in the under the microscope endoplasmic reticulum. Okay, so next one is, this endoplasmic reticulum is mainly a network of tubular, you can say tubular means some tubes, tube-like structure is there, and flat vesicle structures, and flat vesicular structures are there. Okay, so this the closed flattened surface, yeah, we can say the closed flattened membrane bound these sacs, these are the spaces. This space is mainly known as cistern space, and this membrane, the membrane, mainly the membrane sacs which are present on the surface of this tubular structures, अंडरस्टैंडिंग, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड, अंडरस्टैंडिंग, यानी उनके ऊपर होता है मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को हम मेनली क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी, अंडरस्टैंडिंग. सो इनसाइड दिस वन यू कैन सी, इनसाइड दिस सिस्टर्न स्पेसेस, these you can see the small vesicles are there, they are nothing but they are the ribosomes, understanding. So this is mainly this rough endoplasmic reticulum, and this is smooth reticulum. Sorry, smooth endoplasmic reticulum does not contain ribosomes, but rough endoplasmic reticulum contains ribosomes in order to maintain, in order to this one form, synthesize the proteins, ठीक है ना, proteins को बनाने के लिए, ठीक है ना, राइबोसोम्स की जरूरत होती है, ठीक है. जब राइबोसोम्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, वही मेनली सिंथेसाइज करते हैं, फॉर्म करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किसका, जिस वन प्रोटीन्स का. लेकिन राइबोसोम्स के साथ यहाँ पे मिक्स होता है कुछ एंजाइम्स जो हेल्प करता है, विच विल बी हेल्पिंग इन द सिंथेसिस, फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस वन प्रोटीन्स, ठीक है ना, inside the nucleus, to the outside cell, sorry, inside this this one endoplasmic reticulum, understanding. And we can also say that if we have to make the difference between the smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum, अगर हमें डिफरेंस करना होगा, मैंने पहले ही बोला कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द ट्यूबुलर एंड फ्लैट structures, ठीक है ना, which mainly contains ribosomes, but smooth endoplasmic reticulum, they do not contain ribosomes, understanding, that's why they are known as smooth endoplasmic reticulum. If we have to make the difference, we can say that this one smooth endoplasmic reticulum, I have already told you, ribosomes are absent, and in the rough endoplasmic reticulum ribosomes will be present. And next one is the main difference between the smooth endoplasmic reticulum in terms of the functioning is that this smooth endoplasmic reticulum, it is mainly the site for synthesis of lipid and steroid hormones. यानी ये क्या करता है, जो लिपिड्स होती है ना, यानी स्मूथ है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो लिपिड होती है, जो फैट्स होते हैं ना, फैट्स को बनने में मदद करता है, और जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, ठीक है ना, जो हार्मोन्स हैं, कुछ हार्मोन्स बनते हैं जो मेनली, जिसको मेनली सिंथेसाइज कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम.
in contrast with the smooth and in contrast with this rough endoplasmic reticulum, we can say this ribosomes and enzymes, understanding, they mix up and they will perform the functioning of formation, transportation and synthesis of the proteins, understanding, and we can say processing and packaging and transportation of the proteins, that is done by the rough endoplasmic reticulum. Okay, the next one is the लोकेशन, ठीक है ना, हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर यानी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, मेनली अगर हम मेनली बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं ना, ठीक है ना, वहां पे मेनली फैट का जरूरत होती है या लिपिड्स का जरूरत होती है, ठीक है ना, ताकि वहां पे जो मसल्स होते हैं या फैट्स जो है वहां पे मेनली जो एनर्जी उनको सिंथेसाइज होती है या एनर्जी मिलती है, ताकि फिर अच्छे से हम एक्टिविटी वी कैन be able to carry out the daily life activities, understanding, by using that, utilizing that energy which is being stored inside the adipocytes. जो मसल के अंदर होते हैं cells, उनको हम बोलते हैं adipocytes. So we can say no that this one smooth endoplasmic reticulum may be present in the this one adipocytes and lipid forming cells, understanding, and also testes, we can say जो मेल टेस्टिस होते हैं, ठीक है, एंड वी कैन आल्सो से लिवर सेल्स, जो लिवर सेल्स हेपेटोसाइट्स के अंदर भी होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना. सो देन नेक्स्ट वन इज द मसल सेल्स तो मैंने पहले ही बोला, मसल सेल्स के मेनली अंदर होता है एडिपोसाइट्स, अंडरस्टैंडिंग, सो दे विल बी हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, दैट इज फैटी एसिड्स, अंडरस्टैंडिंग. लास्ट वन इज द डब्ल्यूबीसीज, एंड जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा सेल्स, सॉरी व्हाइट ब्लड के सेल्स के अंदर जो होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स, जैसे ग्रेनुलोसाइट्स मींस इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है ना, जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इम्यून रिस्पांस में हेल्प करता है. और दूसरा होता है दिस वन, और दूसरे जो होते हैं प्लाज्मा सेल्स, वो मेनली किस में प्रेजेंट होते हैं, जो वो मेनली प्रेजेंट होते हैं, उसमें मेनली प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लोकेशन क्या होता है, मेनली ये कहाँ पे होता है या किस साइड पे होता है हमारी बॉडी के अंदर, वी कैन से प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स, अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं जो मेनली प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं बनाते हैं, वहीं पे प्रेजेंट होता है. जैसे पैनक्रियाटिक सेल्स होते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं, ठीक है, देन गॉबलेट सेल्स होते हैं, ठीक है ना, गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो मेनली म्यूक्स मेम्ब्रेन, वो हमारे स्किन के अंदर होता है, टिश्यूज के अंदर होता है, कनेक्ट टिश्यू जो होता है ना, कनेक्ट टिश्यू. If you might have the knowledge about the tissue, that is there are mainly 4 types of tissues. Epithelial tissue is there, connective tissue is there, muscle tissue is there, and nervous tissue is there. So we can say जो nervous जो ये होता है ना, this one connective tissue के अंदर होता है cells, goblet cells, understanding. So जो goblet cells होते हैं, goblet cells के अंदर mainly this rough endoplasmic reticulum प्रेजेंट होता है, ठीक है. ये नहीं, नेक्स्ट वन इज द प्लाज्मा सेल्स. इन प्लाज्मा सेल्स होते हैं जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा जो मेनली ब्लड होता है, ठीक है, उसके अंदर जो होता है डब्ल्यूबीसीज के अंदर होता है ग्रेनुलोसाइट्स, और प्लाज्मा सेल्स होते हैं एग्रेनुलोसाइट्स, उनके अंदर ग्रेनुल्स नहीं होते, सो वो भी बनाता है मेनली, उसके अंदर भी होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड लास्ट वन इज द नर्व सेल्स. जो नर्व सेल्स होते हैं या वो कहते हैं नर्वस टिश्यू जो होते हैं, जो नर्वस टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं, तो वो भी क्या करता है, वो भी साइट होता है, तो वहां पर भी उनके अंदर भी होता है क्या, उनके अंदर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दिस वाज ऑल अबाउट this one structure, we can say structure and the difference between the this one rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, understanding. So mainly the main function of this endoplasmic reticulum is making the protein in folds, यानी protein foldings, यानी मतलब ये होता है कि जो प्रोटीन होता है ना, ठीक है ना, जो प्रोटीन होता है, ठीक है ना, उसको क्या करता है, उसको मेनली सिंथेसाइज करता है, उसको पहले मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है ना, सो देन बनता है प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, उसके प्रोसेसिंग होता है, ठीक है ना, उनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लास्ट में होता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, जो भी सेल के अंदर जहाँ पे प्रोटीन्स की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है ऑल ओवर द सेल, सो ये वहाँ पे हेल्प करता है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस endoplasmic reticulum, that is subunits, 2 subunits, that is smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. So as I have told you the differences between this one smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Okay, now we are going to discuss about the general functioning of this endoplasmic reticulum. The first main function of this endoplasmic reticulum is डिटॉक्सिफिकेशन. डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ. जब आप खाना खाते हो तो खाने के अंदर, ठीक है ना, खाने के अंदर कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं या कुछ पॉइजनस होते हैं, या जब आप ड्रग लेते हो, मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन के अंदर कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, चाहे वो एंटीजेनिक फॉर्म हो, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, ठीक है ना, जो आपके बॉडी के लिए, चाहे वो गैसियस फॉर्म हो, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो उनको रिमूव करने में मदद करता है, ठीक है ना. जो मेनली
इसलिए मैंने पहले ही बोला कि जो लिवर सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स के अंदर, ठीक है ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो वहां पर मेनली वो हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ दिस drugs and the poisonous substances in the food as well as in the drugs, understanding. And next one is it also helps in the release of the calcium ions. जो कैल्शियम आयन होते हैं ना, वो रिलीज होते हैं और वो कहाँ पे जाते हैं, मेनली हेल्पफुल होते हैं किसमें, मस्कुलर सिस्टम और जिस वन नर्वस सिस्टम है, यानी नर्वस सिस्टम है वहाँ पे मेनली कैल्शियम की जरूरत होती है, ठीक है ना, ताकि जो नर्व सप्लाई होती है, ताकि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो मेनली जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनका एनर्जी यानी उनको स्ट्रेंथ बनाने के लिए, उनका प्रोसेसिंग अच्छे करने के लिए उनको कैल्शियम की जरूरत होती है, ठीक है, कैल्शियम आयन्स की, अंडरस्टैंडिंग, विच इज एन इलेक्ट्रोलाइट, अंडरस्टैंडिंग, which carries we can say electric charge. Okay, next one is it mainly helps in the protein synthesis as well as formation of the lipids, ठीक है ना, we can say lipids, phospholipids, fat, this one we can say also steroid hormones, उसमें भी बनने में हेल्प करता है, ठीक है ना, जो मैंने पहले ही बोला आप लोगों को, इट आल्सो हेल्प्स इन द प्रोटीन फोल्डिंग्स, यानी जो प्रोटीन होती हैं उनका सिंथेसिस, उनका प्रोसेसिंग और उनका ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द अनसैचुरेशन ऑफ द फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड ऑफ द फैटी एसिड्स का मतलब ये होता है कि जो मेनली जो फैटी एसिड्स होते हैं या जो लिपिड्स होते हैं वो उनको एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, जब उनको सेल को एब्जॉर्ब करना पड़ता है, या जो फैट्स होते हैं, ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है ना, मेनली इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट्स होते हैं या फैटी एसिड्स या लिपिड्स होते हैं, तो उनको एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द सेग्रीगेशन ऑफ द प्रोटीन। व्हाट इज सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन का मतलब होता है लाइफ साइकिल, यानी जो प्रोटीन बनता है उनका एजिंग, ठीक है ना, उनका डिफरेंशिएशन, जो प्रोटीन्स होते हैं उनका डिफरेंशिएशन यानी एजिंग, ठीक है ना, उनको कितना टाइम लगता है बनने में, उनका स्टोरेज कहाँ पे स्टोर होना है, ठीक है ना, कहाँ पे काम करना है, वो सब जो डिस्ट्रीब्यूशन या उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है, जहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, वो मेनली एंडोप्लाज्मिक, यानी आप लोग ये समझो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वही मेनली प्रोटीन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल के अंदर कि कहां पे प्रोटीन्स की जरूरत होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द मसल कंट्रैक्शन, यानी जो मसल फाइबर्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, जहां पे मेनली मसल सेल्स होते हैं, यानी एडिपोसाइट्स होते हैं मसल के अंदर, जो उनका अंदर जो फाइबर्स होते हैं, तो उनके अंदर एक तरीके का वो क्या जनरेट करते हैं इम्पल्सेस, ताकि जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना, जो मसल होंगे वो कंट्रैक्शन करेंगे, लेकिन उस चीज के लिए तो एनर्जी चाहिए ही, ठीक है, तो वहां मेनली होगा एडिपोसाइट्स, ठीक है ना, जो मेनली कंटेन करते हैं जिस वन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जिससे मेनली क्या होता है, जो मसल फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करके क्या होता है, वहां पे कंट्रैक्शन जनरेट इम्पल्सेस करते हैं, जिसकी वजह से कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ द लिपिड्स। ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये हेल्प करता है लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स या बोल सकते हैं फैटी एसिड। एंड लास्ट फंक्शन इज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, उनको मेटाबॉलिज्म यानी वी कैन से देयर इज इट इज द, ठीक है ना, व्हेन द लार्ज मॉलिक्यूल्स are being converted, या molecules are being converted या break down into simpler and small molecular form, यानी जो मेनली जो पॉलीसेकेराइड्स या शुगर मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, ठीक है ना, ग्लूकोज जो भी होता है ना, तो उनका मेटाबॉलिज्म या उनका डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, understanding. So today in this topic, in this class, we will discuss up to here on